ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਗਿਲਸ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ 14 ਸਤੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ, ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ, PPSC, SSC, CGL, CHSL ਜਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾफ़ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਾफ़ी ज़्यादा घੱਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਈਂਡਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ IBPS, RRB, JEE ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, SI ਔਰ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਬੈਚਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਰੋਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਐਨਰੋਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਲਿੰਕ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦਿਵਸ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੁਆਰਾ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦਿਵਸ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪੂਨਮ ਖੱਤਰੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੂਸ਼ੂ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਡਲ ਨੂੰ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਦੇ ਲਈ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡਲ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪਲੇਅਰਜ਼ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਐਂਬੈਸਡਰਸ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰਸ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ ਔਰ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਦਾਨਾ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਟਿਡ ਐਨ ਐਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀ। ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅੰਡਰ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਆਫ ਫਾਰਮਰ ਕੈਗ ਰਾਜੀਵ ਮਹਿਰਿਸ਼ੀ। ਕੰਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਰਾਜੀਵ ਮਹਿਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ? ਟੂ ਅਸਿਸਟ ਇਨ ਦਾ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਆਫ ਰਿਲੀਫ ਟੂ ਬੈਂਕ ਬੋਰੋਵਰਸ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪਰੇਸ਼ ਰਾਵਲ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਆਫ ਡਰਾਮਾ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੁਆਰਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਆਫ ਡਰਾਮਾ 1959 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਔਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਇਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ V ਮੁਰਲੀਧਰਨ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਫॉर एक्सटर्नल अफेयर्स, या कह सकते हैं डिप्टी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर V मुरलीधरन द्वारा 10th ईस्ट एशिया समिट फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਫਾइनेंस ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਫਾइनेंस ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰੀਆਲ ਨਿਸ਼ਾਂਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਨ 21st ਸੈਂਚੁਰੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਕੌਨਕਲੇਵ ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਥਰੂ ਔਨਲਾਈਨ ਮੀਡੀਅਮ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਦੁਆਰਾ ਈਜ਼ enhanced assess and service excellence ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਰੈਂਕਿੰਗ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰਿਫਾਰਮ ਇੰਡੈਕਸ 2.0, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਦੁਆਰਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਪਲੇਸ ਤੇ SBI ਰਿਹਾ ਔਰ ਥਰਡ ਪਲੇਸ ਤੇ OBC ਓਰੀਐਂਟਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕਮਰਸ ਇਸ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰਡ ਪਲੇਸ ਤੇ ਰਿਹਾ। SBI ਹੈਜ਼ ਲਾਂਚ ਅ ਨਿਊ ਸਕੀਮ ਸਫਲ ਸਕੀਮ ਨੂੰ SBI ਦੁਆਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ? ਆਰਗੈਨਿਕ ਕਾਟਨ ਬੋਰੋਵਰਸ ਦੇ ਲਈ। ਸੇਫ ਐਂਡ ਫਾਸਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੋਨ ਸਫਲ ਲੋਨ SBI ਦੁਆਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ICICI ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਆਈ ਸਟਾਰਟਅਪ 2.0 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟਸ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, याद रखना है आई स्टार्टअप 2.0 ICICI बैंक द्वारा। नेक्स्ट है अयोध्या एयरपोर्ट विल बी नेम्ड आफ्टर लॉर्ड रामा।
भगवान राम के नाम के उत्ते अयोध्या एयरपोर्ट का नाम रखा जाएगा। ये बेसिकली डोमैसटिक और इंटरनेशनल दोनों फ्लाइट्स सपोर्ट करेगा और इसनू कंप्लीट करने की डेडलाइन है 2021 दिसंबर 2021 इसनू बनाने की डेडलाइन रखी गई। नेक्स्ट है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये सैकेंड फुटबॉलर बने ने और यह कह सकते हैं पहले यूरोपियन फुटबॉलर बने ने जिन्होंने 100 इंटरनेशनल गोल्स अचीव किए हैं, जिन्होंने 100 इंटरनेशनल गोल्स अचीव किए हैं। अगर गल करिए रिकॉर्ड की तो सब तो पहला रिकॉर्ड है अली देई का कितना रिकॉर्ड है 109 इंटरनेशनल गोल्स का रिकॉर्ड है। नेक्स्ट है MP मध्य प्रदेश द्वारा दीनदयाल अंत्योदय रसोई स्कीम, मध्य प्रदेश द्वारा दीनदयाल अंत्योदय रसोई स्कीम नू लॉन्च किया गया। मध्य प्रदेश द्वारा इस स्कीम नू लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट अलॉन्ग विद CISF दे नाल मिलके सेंट्रल इंडस्ट्रीज सिक्योरिटी फोर्स दे नाल मिलके तेलंगानाकू हरित हराम इस इनिशिएटिव नू लगाया गया जिस दे अंडर प्लांट्स लगाए गए हैं। हैदराबाद एयरपोर्ट के उत्ते प्लांट्स लगाए गए हैं, 600 प्लांट्स नू प्लांट किया गया। इंडियन एयरफोर्स इंड्यूस्ड रफाल जेट्स एट अंबाला एयरबेस ऑफ हरियाणा। इंडियन एयरफोर्स द्वारा 5 रफाल जिहड़े फ्रांस तो लिते गए हैं इन्हों अंबाला एयरबेस दे विच इंजैक्ट किया गया। बेसिकली 36 की डील हुई है फ्रांस के नाल, जिन्हों का टारगेट है 2022 कि 2022 तक इंडिया नू दे दिते जाएंगे। अगर गल करिए तो इन्हों 17th स्क्वाड्रन का पार्ट बनाया गया है या कह सकते हैं गोल्डन एरोज का पार्ट बनाया गया और यह चौथी कंट्री होएगी जिहड़ी फ्लाई करेगी रफाल आफ्टर इजिप्ट, फ्रांस और कतर। नेक्स्ट है नागालैंड लॉन्चीज नागा टेली हेल्थ प्लेटफॉर्म। नागालैंड द्वारा नागा टेली हेल्थ प्लेटफॉर्म कोहिमा दे विच लॉन्च किया गया टू प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ टू डोर स्टेप्स ऑफ पीपल। नेक्स्ट है हुबली रेलवे स्टेशन जिहड़ा करनाटका दे विच है, इन्हां ने सिद्धू रोदा स्वामी जी रेलवे स्टेशन नाम रखा गया। इसका नाम चेंज करके सिद्धू रोदा स्वामी जी रेलवे स्टेशन रखा गया। नेक्स्ट है इंडिया हैज़ साइंड एन एग्रीमेंट ऑफ रेसिप्रोकल प्रोविजन ऑफ सप्लाईज एंड सर्विसेज बिटवीन द आर्म्ड सर्विसेज विद जापान। बेसिकली इंडिया ने जापान के नाल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट साइन किया है। इंडिया ने जापान के नाल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट नू साइन किया है। नेक्स्ट है SCO दी हैड ऑफ स्टेट समिट रशिया होस्ट करेगा वर्चुअल फॉर्म दे विच। नवंबर 2020 दे विच SCO हैड ऑफ स्टेट समिट होस्ट करेगा। सिमिलर तरीके दे नाल SCO दा हैड ऑफ गवर्नमेंट समिट इंडिया होस्ट करेगा न्यू दिल्ली दे विच 29 और 30 नवंबर को। ठीक है जी। प्लस इंडिया इस दे नाल ही SCO स्टार्टअप फोरम, SCO यंग साइंटिस्ट कॉन्क्लेव और एग्जीबिशन ऑन शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज, इन्हां तीनों इवेंट्स नू भी इंडिया ही होस्ट करेगा SCO दे। ठीक है जी। नेक्स्ट है बांग्लादेश द्वारा कैंपेन लॉन्च किया गया असोल चीनी या रियल शुगर कैंपेन, ताकि जी फेक इंफॉर्मेशन होंदियां ने, फेक न्यूज़ होंदियां ने सोशल मीडिया के उत्ते उन्होंने फैलन तो रोकया जा सके। ठीक है जी। अच्छा एक अनाउंसमेंट पहले ही डिस्कस कर लेने स्टैटिक पोर्शन, उस तो बाद एक अनाउंसमेंट है इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। गुजरात दे विच स्टेट एनीमल एशियाटिक लॉयन है, बर्ड फ्लैमिंगो और स्टेट ट्री मैंगो है। गोवा स्टेट एनिमल गौर, स्टेट बर्ड रूबी गुला और मैटी स्टेट ट्री है। हिमाचल प्रदेश स्नो लियोपार्ड स्टेट एनिमल है, स्टेट बर्ड मोनल है और देओदर स्टेट ट्री है। हरियाणा ब्लैक बक स्टेट एनिमल है, ब्लैक फ्रैंकोलिन स्टेट बर्ड है और पीपल स्टेट ट्री है। अच्छा एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि आप एक क्लास लेके आ रहे हैं करंट अफेयर्स की क्लास
6 ਜਾਂ 7 ਮੰਥ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 7 ਮੰਥ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਮੈਰਾਥਨ ਕਲਾਸ ਹੋਏਗੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ 400 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 500, 450 ਤੋਂ 500 MCQs ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ MCQs ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫੁੱਲ ਨਾਈਟ ਚੱਲੇਗੀ ਕਲਾਸ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਲਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਹੀ ਇੱਕ ਉਹ ਕਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕਲਾਸ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵੱਲ ਅੱਜ ਦੇ। ਵਿਚ ਡੇ ਇਜ਼ ਓਬਜ਼ਰਵਡ ਐਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਫॉर ਸਾਊਥ ਸਾਊਥ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਆਫ ਸਾਊਥ ਸਾਊਥ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਦਿਨ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦਿਨ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ। 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਫॉर ਸਾਊਥ ਸਾਊਥ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ, ठीक है जी। बाकी दिनों की अगर आप गल करिए, आप काफ़ी बार डिस्कस किए ने, एक बार दोबारा रिवाइज कर लें। 10 सतंबर वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, 10 सतंबर नू वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। 8 सतंबर इंटरनेशनल लिटरेसी डे, इंटरनेशनल लिटरेसी डे, ठीक है जी। 8 सतंबर इंटरनेशनल लिटरेसी डे। 5 सतंबर नैशनल टीचर्स डे, पहले था नैशनल टीचर्स डे प्लस 5 सतंबर ਨੂੰ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਰਿਟੀ ਡੇ ਵੀ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਰਿਟੀ ਡੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਡੈਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਆਫ ਮਦਰ ਟੈਰੇਸਾ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ। 2 ਸਤੰਬਰ ਵਰਲਡ ਕੋਕੋਨਟ ਡੇ, ਵਰਲਡ ਕੋਕੋਨਟ ਡੇ। ਇਨਵੈਸਟ ਇਨ ਕੋਕੋਨਟ ਟੂ ਸੇਵ ਦਾ ਵਰਲਡ, ਟੂ ਸੇਵ ਵਰਲਡ, ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰੋ ਕੋਕੋਨਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੀ ਥੀਮ ਰਹੀ ਸੀ। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल इकनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। ग्लोबल इकनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, ग्लोबल इकनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स रिलीज़ किया गया किन्ना द्वारा? कैनेडाज फ्रेसर इंस्टीट्यूट, कैनेडाज फ्रेसर इंस्टीट्यूट द्वारा। इस इंडेक्स दे विच इंडिया दे रैंक किन्ना रहा? इस इंडेक्स दे विच इंडिया किन्नवें रैंक पे आया? इंडिया आया 105 रैंक पे। बेसिकली अगर लास्ट ईयर की गल करिए, लास्ट ईयर इंडिया 79th रैंक पे सीगा, 79th रैंक पे सीगा और काफ़ी ज़्यादा पिछे चला गया है। हुण इंडिया का रैंक है 105 2020 दे विच इकनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स दे विच, ग्लोबल इकनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स दे विच किन्नवें रैंक पे है? 105th रैंक पे, ठीक है जी। अच्छा, केड़ी कंट्री ने इस इंडेक्स में टॉप किया है? हांगकॉन्ग ने, हांगकॉन्ग द्वारा इस इंडेक्स में टॉप किया गया। सैकेंड प्लेस ते सिंगापुर रहा, सैकेंड प्लेस ते सिंगापुर और थर्ड प्लेस न्यूजीलैंड, तीसरे नंबर ते न्यूजीलैंड है, ठीक है जी। अच्छा, बाकी ऑप्शंस की अगर आप गल करिए तो सब तो पहले 63 ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग वर्ल्ड बैंक द्वारा रिलीज़ की जाती है। 2019 की रैंकिंग दे विच इंडिया का रैंक 63 रहा सी और टॉप किया गया सी न्यूजीलैंड द्वारा। टॉप केड़ी कंट्री द्वारा किया गया सी? न्यूजीलैंड द्वारा। और याद रखना है इस साल के लिए 2020 के लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग नू सस्पेंड किया गया। इस साल वर्ल्ड बैंक इस रैंकिंग नू रिलीज़ नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, सिमिलर तरीके नाल इंडिया भी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग का 4th एडिशन इंडिया ने भी रिलीज़ किया। उसदे विच केड़ी स्टेट ने टॉप किया सी? उसदे विच केड़ी स्टेट ने टॉप किया सी? आंध्र प्रदेश ने टॉप किया सी। 76th अगर आप गल करिए इंडिया सोशल मोबिलिटी इंडेक्स दे विच, सोशल मोबिलिटी इंडेक्स दे विच 76th नंबर ते रहा सी और टॉप किया गया सी डेनमार्क द्वारा। 112 इंडिया की रैंकिंग केड़ी इंडेक्स दे विच रही सी? जेंडर गैप दे विच, जेंडर गैप इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स टॉप किया गया सी आइसलैंड द्वारा, आइसलैंड द्वारा टॉप किया गया सी। 142 इंडेक्स इंडिया की केड़ी रैंकिंग दे विच रही सी? 142 इंडिया की रैंकिंग रही सी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स दे विच 142 रैंकिंग रही सी। टॉप केड़ी कंट्री ने किया सी? कमेंट बॉक्स दे विच आंसर देना है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स दे विच केड़ी कंट्री ने टॉप किया सी? नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज यूनिसेफ, यूनिसेफ सेलिब्रिटी एडवोकेट फॉर द राइट चाइल्ड राइट्स कैंपेन फॉर एवरी चाइल्ड। यूनिसेफ द्वारा एक कैंपेन लॉन्च किया गया फॉर एवरी चाइल्ड,
फॉर एवरी चाइल्ड, बेसिकली बच्चों के राइट्स के लिए कैंपेन लॉन्च किया गया फॉर एवरी चाइल्ड। उसके लिए सैलीब्रिटी एडवोकेट या डायरैक्ट कह सकते हैं एंबेसडर कौन अपॉइंट किए गए? एंबेसडर अपॉइंट किए गए ने आयुष्मान खुराना नूं रिसेंटली बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस का ब्रांड एंबेसडर अपॉइंट किया गया और होर इन्हों अपॉइंट किया गया फॉर एवरी चाइल्ड कैंपेन दे। ठीक है जी, दोनों याद रखना है। अच्छा, सलमान खान की गल करिए, सलमान खान नूं रियलमी मोबाइल फोन के लिए ब्रांड एंबेसडर अपॉइंट किया गया। अमिताभ बच्चन IDFC फर्स्ट बैंक के ब्रांड एंबेसडर अपॉइंट किए गए। प्लस अमिताभ बच्चन ही ट्विटर का एक कैंपेन सीगा, ट्विटर के उत्ते डिजिटल कैंपेन लॉन्च किया गया RBI द्वारा कैंपेन लॉन्च किया गया और उसके लिए अमिताभ बच्चन नूं फेस अपॉइंट किया गया सी, एंबेसडर अपॉइंट किया गया सी। पंकज त्रिपाठी बिहार दे खादी मॉल के लिए एंबेसडर अपॉइंट किया गया सी पंकज त्रिपाठी। रणदीप हुड्डा नूं माइग्रेटरी स्पीसीज़ के लिए वाइल्ड लाइफ एंबेसडर अपॉइंट किया गया है 2022 या 23 तक के लिए रणदीप हुड्डा। नेक्स्ट है गुजरात हैज़ साइंड अ लोन एग्रीमेंट ऑफ ₹466 करोड़ फॉर सेटिंग अप ऑफ 200 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट। बेसिकली गुजरात द्वारा 200 मेगावाट का एक सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाने के लिए 200 मेगावाट का एक सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाने के लिए 466 करोड़ का एग्रीमेंट साइन किया गया। किस दे नाल? फ्रांस के EG ग्रुप के नाल, NG ग्रुप के नाल, प्लस एक बैंक के नाल। किहड़े बैंक के नाल? ADB के नाल। ADB के नाल मिलके गुजरात के 200 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा, अगर गल करिए एशिया का सब तो बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट कित्थे लगाया गया सी? MP दे विच लगाया गया सी। याद रखना है, MP दे रेवा डिस्ट्रिक्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा इसनूं इनोग्रेट किया गया सी। ADB की गल करिए, मसत्सुगु आसाकावा इस दे हैड ने। मनीला फिलीपींस दे विच हैडक्वार्टर है और 68 मैंबर कंट्रीज़ ने। अशोक लवासा नूं रिसेंटली इस दे वाइस प्रेजिडेंट अपॉइंट किया गया। बाकी ऑप्शनस की अगर आप गल करते हैं तो सब तो पहले वर्ल्ड बैंक 189 मैंबर कंट्रीज़, IMF 189 मैंबर कंट्रीज़, NDB 5 मैंबर कंट्रीज़ यानी कि ब्रिक्स कंट्रीज़ का बैंक है, और AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इस दे विच किन्ने मैंबर ने? इस दे विच रिसेंटली लेबानोन मैंबर अपॉइंट किया गया सी। लेबानोन नहीं सी, शायद कोई होर कंट्री सी, मेरे माइंड चो स्किप कर रही है। इस दे विच टोटल मैंबर कंट्रीज़ हो चुकी ने 103, ये याद रखना है। लिब्रेविले सी शायद, मेरे माइंड चो स्किप कर रही है। चलो कमेंट बॉक्स में तुसीं दसनी है। इस तो इलावा हैडक्वार्टर की गल करिए, वाशिंगटन DC वर्ल्ड बैंक वाशिंगटन DC, IMF वाशिंगटन DC, NDB शंघाई चाइना दे विच है, AIIB का बीजिंग चाइना दे विच है। वर्ल्ड बैंक के हैड ने डेविड मलपास, IMF के हैड क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, NDB के हैड मार्कोस त्रेयोजो और AIIB के हैड ने जिम लिक्विन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्टर हैज़ लॉन्च वेबसाइट ऑफ एरो इंडिया 2020। एरो इंडिया 2021 की वैबसाइट लॉन्च की गई 3 तो लैके 7 फरवरी 2021 दे विच हैल्ड किया जाएगा एरो इंडिया समिट 2021 दे विच। और कित्थे हैल्ड किया जाता है? एयरफोर्स स्टेशन यलहंका बेंगलुरु दे विच। हर साल एयरफोर्स स्टेशन यलहंका बेंगलुरु दे विच। सब तो पहले इस रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स ने और डिस्कस करते हैं। 1996 दे विच इसनूं बनाना शुरू किया गया सी, मतलब ऑब्जर्व करना शुरू किया गया सी और यह 2 साल दे विच एक बार ऑब्जर्व किया जाता है। 2 साल दे विच एक बार ऑब्जर्व किया जाता है। यह इसका 13वां एडिशन होएगा। 13वां एडिशन बेंगलुरु दे विच 13वां एडिशन होएगा 2021 का और 12वां एडिशन 2019 दे विच हैल्ड किया गया। ठीक है, किसने वैबसाइट लॉन्च की है? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। डिफेंस मिनिस्टर लखनऊ उत्तर प्रदेश तो लोक सभा MP ने इन्हों द्वारा वैबसाइट लॉन्च की गई।
बाकी ऑप्शनस की अगर आप गल करिए, हरदीप सिंह पुरी हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री इन्हों लवे, प्लस सिविल एविएशन मिनिस्ट्री भी देख रहे हैं। इन्हों द्वारा क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज़ असैसमेंट फ्रेमवर्क 2.0 क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज़ असैसमेंट फ्रेमवर्क 2.0 रिलीज़ किया गया, लॉन्च किया गया। प्लस स्ट्रीट्स ऑफ पीपल चैलेंज भी लॉन्च किया गया, स्ट्रीट्स ऑफ पीपल चैलेंज भी लॉन्च किया गया हरदीप सिंह पुरी द्वारा। संतोष कुमार गंगवार लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर ने बरेली उत्तर प्रदेश तो लोक सभा MP ने। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर संतोष कुमार गंगवार ने G20 लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स की मीटिंग दे विच पार्टिसिपेट किया। इंडिया वालों G20 लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स की मीटिंग दे विच पार्टिसिपेट किया गया संतोष कुमार गंगवार द्वारा। प्रहलाद सिंह पटेल कल्चर एंड टूरिज्म मिनिस्टर ने, इन्होंने 17वीं SCO की कल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग दे विच पार्टिसिपेट किया। SCO की फॉरन मिनिस्टर्स की मीटिंग हैल्ड की गई, उस तो पहले डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हैल्ड की गई, तो हुण कल्चर मिनिस्टर्स की मीटिंग हैल्ड की गई। ठीक है जी। बाकी SCO के बारे हुणे आप डिस्कस करके हटे हैं। हैड ऑफ गवर्नमेंट समिट और हैड ऑफ स्टेट समिट। हैड ऑफ स्टेट समिट रशिया होल्ड करेगा, हैड ऑफ गवर्नमेंट समिट इंडिया होल्ड करेगा। मनसुख लाल मंडाविया शिपिंग मिनिस्टर ने, मनसुख लाल मंडाविया इन्होंने सरोद पोर्ट्स लॉन्च किए हैं। बेसिकली सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल रीड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट पोर्ट्स, सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल रीड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट पोर्ट्स। इस दे अंडर की होएगा कि जिहड़े डिस्प्यूट्स ने उन्होंने सोल्व किया जा सके मैरीटाइम सैक्टर दे विच। कित्थे लॉन्च किया गया, इसनूं न्यू दिल्ली दे विच लॉन्च किया गया। नैक्सट है who has been added in the 11-member WHO independent panel for pandemic preparedness and response from all over the world। अगर आप गल करिए कि WHO वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ बनाया गया सी। जिनेवा स्विट्जरलैंड ਦੇ ਵਿੱਚ हैडकुआटर है। टेड्रोस एडनोम इस दे हैड ने। ठीक है, सब तो पहले तो WHO बारे ये 3 फैक्ट्स इंपोर्टेंट याद रखने ने जरूरी ने। हुण इन्होंने की करा 11 मैंबर का एक पैनल बनाया, किस दे लई, पैंडेमिक दे लई बेसिकली रिस्पोंस पैनल बनाया गया पैंडेमिक नूं कंट्रोल करने दे लई। तो इस दे विच इंडिया वालों किहड़े मैंबर अपॉइंट किए गए, प्रीति सूदान। इंडियन वूमेन ने प्रीति सूदान बेसिकली इंडिया के फॉर्मर हैल्थ सैक्रटरी ने, फॉर्मर हेल्थ सैक्रटरी ने इंडिया के प्रीति सूदान इन्हों इस दे विच ऐड किया गया, इन्हों का नाम इस दे विच ऐड किया गया। बाकी ऑप्शनस की गल करिए, काफ़ी इंपोर्टेंट ऑप्शंस ने। सब तो पहले मार्टिन हेरर। मार्टिन हेरर एक ऑस्ट्रियन ब्रिटिश मैथमैटिशियन ने, ऑस्ट्रियन ब्रिटिश मैथमैटिशियन ने इन्हों द्वारा 2021 ब्रेक थ्रू प्राइज़ फॉर मैथमैटिक्स जीतया गया। 2021 ब्रेक थ्रू प्राइज़ फॉर मैथमैटिक्स किन्ना द्वारा जीतया गया है, मार्टिन हेरर द्वारा। इन्हों 3 मिलियन प्राइज़ मनी दी गई है, 3 मिलियन की प्राइज़ मनी भी दी गई। डायना रिग एक ब्रिटिश एक्ट्रैस ने काफ़ी फेमस ने अपने रोल के लिए गेम ऑफ थ्रोन्स दे विच। इस तो इलावा जेम्स बॉन्ड मूवीज़ दे विच भी इन्होंने काफ़ी इंपोर्टेंट रोल अदा किया सी। इन्हों की रिसेंटली डैथ हो गई। ठीक है जी, इन्हों की रिसेंटली डैथ हो गई है डायना रिग। गेम ऑफ थ्रोन्स काफ़ी बच्चों ने देखा होगा, इन्हों दे विच इंपोर्टेंट रोल सीगा इन्हों का। नैक्सट है रामा चंद्र मौली तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव द्वारा एक अवार्ड दिता गया। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव द्वारा कल्लोजी नारायण राव लिटरेसी अवार्ड दिता गया सी रामा चंद्र मौली ने। रामा चंद्र मौली एक पोएट ने, इन्हों तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव द्वारा कल्लोजी नारायण राव लिटरेसी अवार्ड दिता गया। नैक्सट है सुभाष कामत, इन्हों अपॉइंट किया गया चेयरमैन। सुभाष कामत इज़ अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ एडवरटाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ एडवरटाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया ASCI दे चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं सुभाष कामत। नैक्सट विच कंपनी बिकम्स फर्स्ट इंडियन फर्म, विच कंपनी बिकम्स फर्स्ट इंडियन फर्म टू टॉप 200 बिलियन मार्केट कैप। 200 बिलियन की मार्केट कैप नू कवर करने वाली, क्रॉस करने वाली पहली इंडियन कंपनी किहड़ी बनी है, रिलायंस। काफ़ी ईजी सी,
रिलायंस आपां नूं पता है कि रिलायंस के जिहड़े हैड ने सब तो अमीर ने, तो सब तो पहले 200 बिलियन मार्केट कैप नूं कवर करने वाली किहड़ी कंपनी बनेगी? रिलायंस बनेगी। बेसिकली अगर आप गल करिए अमाउंट की या डिटेल दे विच डिस्कस करिए तो 15.3 ट्रिलियन की अमाउंट हो चुकी है इन्हां दी, या फिर 208 बिलियन डॉलर्स। ये रुपीज़ दे विच 15.3 ट्रिलियन और 208 बिलियन डॉलर्स की कमाई वाली केड़ी कंपनी बन चुकी है? रिलायंस। ठीक है जी। अगर गल करिए दूसरी नंबर पर, सैकेंड नंबर पर केड़ी कंपनी है? सैकेंड नंबर पर TCS है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। टाटा की कंपनी है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। इसकी कमाई की गल करिए 8.75 ट्रिलियन है, जिस बेसिकली एक तरीके नाल अद्धी है, 15.3 उसकी है, 8.75 ट्रिलियन। और अगर डॉलर्स दे विच गल करिए तो 119 बिलियन। उसकी 208 है, इसकी 119 बिलियन है। ठीक है, याद रखनी। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा पार्टिसिपेटेड इन इनॉग्रेशन एंड गृह प्रवेशम सेरेमनी ऑफ 1,75,000 हाउसेज बिल्ड अंडर प्राइम मिनिस्टर आवास योजना ग्रामीण इन मध्य प्रदेश ऑन 12 सितंबर 2020। की होया कि प्रधानमंत्री आवास योजना है जिहड़ी ग्रामीण, इस दे अंडर MP दे विच मध्य प्रदेश दे विच 1,75,000 हाउस बनाए गए, 1,75,000 घर बनाए गए ने। बेसिकली पैंडमिक के दौरान ये सारे हाउसिस नूं कंस्ट्रक्ट किया गया है। MP दे विच 12 सितंबर नूं उन्हां दा गृह प्रवेश या कह सकते हैं इनोग्रेशन की गई। किन्ना द्वारा? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा। अगर गल करिए इस इवेंट दे विच MP दे जिहड़े चीफ मिनिस्टर ने शिवराज सिंह चौहान MP दे चीफ मिनिस्टर इस दे विच शामिल सीगे इस इवेंट दे विच, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा इनोग्रेशन की गई। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन है कि इस स्कीम नूं शुरू कदों किया गया सी? प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण स्कीम है जिहड़ी ये शुरू कदों की गई सी? इसनूं शुरू किया गया सी 2016 दे विच। बेसिकली अगर डेट की गल करिए, डेट भी इंपोर्टेंट बनेगी। 20 नवंबर 2016, 20 नवंबर 2016 दे विच इसनूं शुरू किया गया सी। हुण इसनूं 5 साल हो जाएंगे कुछ टाइम बाद। अगर गल करिए यह स्कीम बेसिकली जिहड़े ग्रामीण लोग ने हाउस प्रोवाइड करवाने दे लई, हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम है जिहड़ी बेसिकली उसका ही एक पार्ट है, उसके अंडर इसनूं लॉन्च किया गया। नैक्सट है ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक हुणे आपां डिस्कस करके हटे सी ADB बारे। ADB ने गुजरात नूं लोन दिता। हुण ADB द्वारा ही $50 मिलियन का लोन प्रोवाइड किया गया एक कंट्री नूं। $50 मिलियन लोन टू विच कंट्री? फॉर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट टू जनरेट 3,000 जॉब्स बाय 2024। बेसिकली एक एग्रीमेंट किया गया है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नूं इंक्रीज़ करन दे लई ताकि 3,000 जॉब्स क्रिएट कीतियां जा सकन 2024 तक 3,000 जॉब्स नूं क्रिएट किया जा सके। ठीक है, तो इस दे लई इसनूं क्रिएट करन दे लई की किया गया? एग्रीमेंट किया गया किहड़ी कंट्री दे नाल? बांग्लादेश दे नाल। इस एग्रीमेंट नूं साइन किया गया बांग्लादेश दे नाल। बांग्लादेश कैपिटल ढाका है, करंसी टका चलती है। सूडान कैपिटल खार्तूम है, करंसी पाउंड चलती है। सूडान कैपिटल खार्तूम है, करंसी पाउंड चलती है। साउथ सूडान कैपिटल जूबा, करंसी पाउंड चलती है। ओमान कैपिटल मस्कट, करंसी रियल चलती है। मालदीव्स कैपिटल माले, करंसी रुपया चलती। ठीक है, पहले तो ये कैपिटल और करंसीज याद रखनिया ने, सारियां इंपोर्टेंट बननी है। ठीक है, इस तो इलावा सूडान रिलेटेड एक न्यूज़ सी कि सूडान ने इकनॉमिक एमरजेंसी डिक्लेयर की है। सूडान द्वारा इकनॉमिक एमरजेंसी डिक्लेयर की गई है। बेसिकली इत्थे पहले ही कह सकते हैं लॉकडाउन के कारण काफ़ी ज़्यादा तंगी चल रही सी, लोन है काफ़ी ज़्यादा सूडान के उत्ते, प्लस हुण इत्थे की होया फ्लड आ गई है। फ्लड के कारण होर भी ज़्यादा नुकसान हो चुका है। इस दे लई फाइनली सूडान द्वारा इकनॉमिक एमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। इकनॉमिक एमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है किहड़ी कंट्री द्वारा? सूडान द्वारा।
कैपिटल खोरतुम है, करेंसी पाउंड चलती है, याद रखना है। ठीक है जी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल गॉट FCRA फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 रजिस्ट्रेशन फॉर अलाउइंग इट टू रिसीव फॉरेन फंडिंग। बेसिकली FCRA सब तो पहले तो FCRA एक्ट याद रखना है 2010। ठीक है, ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇੱਕ ਟੈਂਪਲ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਟੈਂਪਲ ਫੋਰਨ ਫੰਡਿੰਗ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਫੋਰਨ ਫੰਡਿੰਗ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਟੈਂਪਲ ਦੀ, ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ। ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਟੈਂਪਲ ਹੈ ਜਾਂ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ FCRA ਦੇ ਅੰਡਰ, FCRA ਦੇ ਅੰਡਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਬਾਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ ਜਗਨਨਾਥ ਟੈਂਪਲ। ਜਗਨਨਾਥ ਟੈਂਪਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜਗਨਨਾਥ ਟੈਂਪਲ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਜਗਨਨਾਥ ਰਥ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਰਥ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਰਿਸੈਂਟਲੀ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। मीनाक्षी टैंपल और कामेक्षी टैंपल, ये दो इंपॉर्टेंट टैंपल्स ने, काफ़ी बार SSC के एग्जाम के पूछे गए ने, कितने ने तमिलनाडु के विच ने, मीनाक्षी और कामेक्षी। सन टैंपल कोणार्क सन टैंपल के नाम नाल जानिया जाता है, कोणार्क उड़ीसा के विच है। कित्थे है? कोणार्क उड़ीसा के विच। रिसेंटली इसकी 100% इलैक्ट्रीफिकेशन के लिए भी रिसेंटली एग्रीमेंट साइन किया गया सी। याद रखना है 100% इलैक्ट्रीफिकेशन सोलर पैनलिंग करने के लिए 100% सोलर इलैक्ट्रीफिकेशन करने के लिए इसनू एग्रीमेंट साइन किया गया सी सन टैंपल के लिए, बेसिकली पूरे कोणार्क टाउन के लिए। ओमकार टैंपल ओमकार जी MP दे विच है। ओमकार टैंपल कित्थे है? MP दे विच। ये याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टैंपल है ओमकार टैंपल। नेक्स्ट है इंडियाज लार्जेस्ट पिगरी मिशन इज़ लॉन्च इन विच स्टेट। इंडिया का लार्जेस्ट पिगरी मिशन है जिहड़ा वो किहड़ी स्टेट दे विच लॉन्च किया गया। इंडिया का लार्जेस्ट पिगरी मिशन किहड़ी स्टेट दे विच लॉन्च किया गया? मेघालय दे विच इसनूं लॉन्च किया गया। बेसिकली पिग फार्मर्स ने, जिहड़े पिग फार्मर्स ने, उन्हां नूं हैल्प करवाउण दे लई, उन्हां नूं फंडिंग प्रोवाइड करवाउण दे लई, या ईजली या कह सकते हैं पिग जिहड़ी एक्सपोर्ट है इसनूं इंक्रीज़ करने के लिए पिगरी मिशन, इंडिया का लार्जेस्ट पिगरी मिशन किहड़ी स्टेट द्वारा लॉन्च किया गया है? मेघालय द्वारा। ठीक है। अच्छा, मेघालय बारे एक चीज़ याद रखनी है, रिसेंटली इत्थे दे गवर्नर अपॉइंट किए गए सी सत्यपाल मलिक मेघालय के गवर्नर अपॉइंट किए गए सी, याद रखना है। मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक, तो ये बेसिकली गोवा के गवर्नर होंदे सी। कित्थे दे? गोवा के गवर्नर होंदे सी। तो गोवा दे विच ਜਿਹੜੇ महाराष्ट्र के गवर्नर ने भगत सिंह खोशियारी नूं गोवा का एडिशनल चार्ज दिता गया। ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा, बाकी स्टेट्स के रिलेटेड कुछ न्यूज़ ने और डिस्कस करते हैं। सब तो पहले पहले यूपी के बारे डिस्कस कर लें। हर्बल रोड्स इनिशिएटिव, इस तो इलावा प्रवासी राहत मित्र एप्लीकेशन यूपी द्वारा, इस तो इलावा युवा एप्रीशिएंसी स्कीम यूपी द्वारा, इस तो इलावा अगर आप गल करिए कौशल सतरंग योजना यूपी द्वारा, काउ स्लोटर एक्ट में अमेंड किया गया सी रिसेंटली यूपी द्वारा। ये सारी स्कीम्स याद रखनिया ने। इस तो इलावा अगर गल करिए खुशीनगर एयरपोर्ट में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिता गया। वृक्षारोपण स्कीम भी यूपी द्वारा लॉन्च की गई। बाकी स्टेट रिलेटेड न्यूज़ ने और डिस्कस करते हैं। सब तो पहले आंध्र प्रदेश द्वारा YSR आसारा स्कीम लॉन्च की गई। आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी द्वारा YSR आसारा स्कीम नूं लॉन्च किया गया। किस दे लई? टू बेनीफिट वूमेन इन सैल्फ हैल्प ग्रुप्स, वूमेन्स नूं बेनीफिट पहुँचाने के लिए, ताकि वूमेन अपने कह सकते हैं आत्मनिर्भर बन सकन। YSR आसरा स्कीम लॉन्च की गई। गुजरात द्वारा हैरीटेज टूरिज्म पॉलिसी अनाउंस की गई। बेसिकली सिमिलर तरीके सब तो पहले असम के बारे आप डिस्कस किया कि हैरीटेज बिल पास किया गया असम की कैबिनेट द्वारा। ठीक है, हुण इन्हां ने प्रॉपर पॉलिसी ही लॉन्च करती हैरीटेज टूरिज्म पॉलिसी, ताकि जी हैरीटेज साइट्स ने उन्होंने बचाया जा सके। अगर गल करिए गुजरात की, तो काफ़ी ज़्यादा हैरीटेज साइट्स ने गुजरात के
अगर गल करते हैं आप फॉर एग्जाम्पल लोथल है, धोलावीरा है, लक्ष्मी विलास पैलेस है। इस तो इलावा अगर आप गल करिए रानी की वाव काफ़ी इंपोर्टेंट डेजिग्नेशन है, गुजरात दे विच है। और यह करंसी नोट्स किहड़े अच्छा मैं नहीं दस रहा, तुसीं दसोगे कमेंट बॉक्स दे विच किहड़े करंसी नोट के उत्ते रानी की वाव की फोटो लगाई गई है। ठीक है, इस याद रखना गुजरात ने अनाउंस की है हैरीटेज टूरिज्म पॉलिसी। प्लस गुजरात टूरिज्म के लिए जोड़े एंबेसडर ने वो कौन ने, अमिताभ बच्चन ने। यह भी याद रखना है गुजरात टूरिज्म के लिए एंबेसडर कौन ने, अमिताभ बच्चन। इस तो इलावा अगर आप गल करिए महाराष्ट्र की, तो इंडिया पोस्ट द्वारा 5 स्टार विलेज स्कीम, इंडिया पोस्ट द्वारा 5 स्टार विलेज स्कीम है जी यह लॉन्च की गई है। 5 स्टार विलेज स्कीम का की मतलब है, महाराष्ट्र दे विच इसनूं लॉन्च किया गया हजे लई, बाद दे विच इसनूं पूरी कंट्री दे विच लॉन्च किया जाएगा ताकि लोगों को अवेयरनैस प्रोवाइड करवाई जा सके पोस्टल प्रोडक्ट और सर्विसिज की। विलेजिज दे विच जिहड़े इंटीरियर विलेज ने, काफ़ी ज़्यादा डीप विलेज ने जिथे डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा घट है, तो उत्थे इंडियन पोस्ट द्वारा जिहड़ी सर्विसिज लॉन्च कीतियां जांदियां ने उन्हां दी जानकारी अवेयरनैस प्रोवाइड करवाउण दे लई 5 स्टार विलेज स्कीम लॉन्च की गई है इंडिया पोस्ट द्वारा। नेक्स्ट है विच यूटी हैज़ लॉन्च यूनीवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम फॉर इट्स रेजिडेंट्स के लिए, बेसिकली स्टेट के विच रहने वाले लोगों के लिए किहड़ी यूटी द्वारा यूनीवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च की गई, हेल्थ बेनीफिट्स प्रोवाइड करवाने के लिए किन्ना द्वारा लॉन्च की गई, जम्मू एंड कश्मीर द्वारा। जम्मू एंड कश्मीर द्वारा इस स्कीम नूं लॉन्च किया गया। ठीक है जी। अच्छा, जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड एक न्यूज़ होर सी कि जम्मू एंड कश्मीर की स्कॉलरशिप स्कीम्स ने प्रगति जी स्कॉलरशिप स्कीम है, प्लस एक स्कीम है सक्षम। जम्मू एंड कश्मीर की जी 2 स्कीम्स ने, ये स्कॉलरशिप स्कीम्स ने, इन्हां दे अंदर 5000 रुपए की स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती सी स्टूडेंट्स नूं। 5000 की स्कॉलरशिप बेसिकली प्रगति जी स्कीम सी गर्ल चाइल्ड के लिए सी। इस दे विच जिहड़ी स्कॉलरशिप है ये 50,000 कर दी गई है, 5000 तो 50,000 कर दी गई है। याद रखना है जम्मू एंड कश्मीर के लैफ्टिनेंट गवर्नर ने मनोज सिन्हा बिल्कुल रिसेंटली अपॉइंट किए गए। इस तो इलावा एक न्यूज़ सी लद्दाख के रिलेटेड, वो भी डिस्कस कर लें। लद्दाख ने की किया, पोषण मेला ऑर्गेनाइज किया। सोनू याद होगा आप डिस्कस किया कि सैप्टेंबर नूं पोषण माह ऑबजर्व किया जा रहा है, पोषण माह ऑबजर्व किया जा रहा है। तो इसे ऑबजर्व करने के लिए अपने तरीके का पोषण मेला लद्दाख द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। एक प्लेस है लद्दाख के ताए सुरू, बेसिकली लद्दाख के कारगिल डिस्ट्रिक्ट के विच है ताए सुरू के विच इसनूं ऑर्गेनाइज किया गया है पोषण मेला। ठीक है जी, याद रखना है। अज दे लई बस इन्ना ही। आई होप तुहानूं सैशन पसंद आया होगा। सैशन नूं लाइक और शेयर जरूर करते रहो काइंडली अपने फ्रेंड्स के नाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सैशन। गुड बाय।